Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear students, today I will solve the remaining problems of exercise 1.3 and starting from question number 6. Question number 6 is, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? रूम टेम्परेचर इनिशियल में क्या है 40 डिग्री सेल्सियस है और एक फ्रीजिंग प्रोसेस, उसमें क्या होता है फ्रीजिंग प्रोसेस में पर आवर में रूम टेम्परेचर डिक्रीज होता था 5 डिग्री सेल्सियस करके। मान लीजिए अगर स्टार्टिंग में रूम टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस तो आफ्टर 1 आवर उसका रूम टेम्परेचर हो जाता है 35 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब पर आवर 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है रूम टेम्परेचर। तो आफ्टर 10 आवर्स ऑफ द प्रोसेसिंग, तो ये जो है 10 घंटा बाद आफ्टर 10 आवर्स वो रूम टेम्परेचर क्या होगा। ओके जब डिक्रीज होता है, जितना डिक्रीज हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, विल कंसिडर इन नेगेटिव इंटीजर। इनिशियल रूम टेम्परेचर is equal to 40 degree Celsius. Let us consider the temperature decreased per hour by negative integer and which is -5 डिग्री सेल्सियस। ओके एक घंटा में टेम्परेचर कितना डिक्रीज होता है 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ है बोल के इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया है। ओके सो इन 10 आवर्स the room temperature will be decreased by 10 घंटा में रूम टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा 10 इंटू -5 डिग्री सेल्सियस दैट इज -50 डिग्री सेल्सियस। Hence, the room temperature the room temperature 10 hours after the process begins. 10 hours after the process begins is equal to, initially the room temperature was 40 degree Celsius, 40 degree Celsius और डिक्रीज हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, दैट इज
50 degree Celsius. Okay, so it will be minus 10 degree Celsius. Okay, this is the answer. Number 7 is, in a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and minus 2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. एक क्लास टेस्ट में करेक्ट आंसर्स के लिए 5 मार्क्स दिया जाता है और इनकरेक्ट आंसर्स के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है, और अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया नहीं तो उसके लिए कोई मार्क्स डिडक्ट भी किया नहीं जाता है और अवार्ड भी किया नहीं जाता है. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन इज, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर. तो मोहन ने 4 करेक्ट आंसर किया है, तो इसमें क्या हम लोग क्वेश्चन से मिला है, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर, 1 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 5. तो मोहन ने 4 करेक्ट आंसर किया है, हेंस मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 4 करेक्ट आंसर फोर into 5, that is 20 marks. And marks awarded for 1 incorrect answer, 1 incorrect answer is equal to -2. तो मोहन ने 6 आंसर इनकरेक्ट किया था, हेंस मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 6 incorrect answer is equal to -2 into 6, that is -12. Hence marks obtained by Mohan, hence marks obtained by Mohan, उसको कितना मिला है, 20 प्लस -12, that is 20 plus minus -12 is equal to 8. Therefore marks obtained by Mohan is 8. Reshma gets 5 correct answers and 5 incorrect answers, what is her score. रेशमा को 7 करेक्ट आंसर हुआ था और 7 इनकरेक्ट आंसर हुआ है था, तो रेशमा को कितना स्कोर मिलेगी. ओके, तो मार्क्स awarded for 1 correct answer is equal to 5. Hence marks awarded for 5 correct answers is equal to 5 into 5, that is 25 marks. Okay, next, marks awarded for 1 incorrect
one incorrect answer is equal to -2. Marks awarded for 5 incorrect answers. 5 incorrect answer. 5 into -2, that is -10. Hence, total marks obtained by रेशमा पॉजिटिव मार्क्स मिले थे उनको 25 प्लस नेगेटिव है 10, सो 15 मार्क्स. Hence, total marks obtained by Reshma is 15. Third part of question number 7 is Hina gets 2 correct and 5 incorrect answers out of 7 questions she attempts. What is her score? इसमें क्या बोला है? हिना attempts 7 questions out of 10 questions. टोटल 10 questions था, उसमें से हिना 7 questions attempt किए हैं. ओके, तो out of these 7 questions she gets 2 correct and 5 incorrect answers. तो हिना की 2 करेक्ट आंसर हुआ है और 5 इनकरेक्ट आंसर हुआ है. तो व्हाट इज हर टोटल स्कोर? हिना की टोटल स्कोर कितने हैं? ओके, तो 3 नंबर मार्क्स awarded for 1 correct answer is equal to 5. Hence, marks awarded for 2 correct answer is equal to 2 into 5, that is 10 marks. Okay, next, marks awarded for 1 incorrect answers, 1 incorrect answers is equal to -2. Hence, marks awarded for 5 incorrect answers. 5 incorrect answers is equal to 5 into -2, that is -10. 5 into -2, that is -10. So, marks obtained by Hina. So, marks obtained by Hina. पॉजिटिव मार्क्स मिला है हिना को पॉजिटिव 10 मार्क्स मिले हैं और नेगेटिव 10 मार्क्स, तो 0. Hence, the marks obtained by Hina is 0. Question number 8 is a cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold. Question number 8, the company sells
3,000 bags of white cement and 5,000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? एक कंपनी सीमेंट कंपनी है, जो सीमेंट कंपनी ने क्या क्या है, सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं. टू टाइप्स ऑफ सीमेंट, वन काइंड इज वाइट सीमेंट एंड अनदर टाइप ऑफ सीमेंट इज ग्रे सीमेंट. तो 1 बैग वाइट सीमेंट कंपनी ने सेल करने से कंपनी को ₹8 प्रॉफिट होते हैं और ग्रे सीमेंट सेल करने से कंपनी को ₹5 लॉस होते हैं. तो कंपनी ने क्या किया है, 3,000 बैग्स वाइट सीमेंट सेल किया है और 5,000 बैग्स ग्रे सीमेंट सेल किया है इन ए मंथ, एक महीना में. तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस. तो कंपनी को कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, प्रॉफिट होने से कितना प्रॉफिट हुआ है और लॉस होने से कितना लॉस हुआ है, वही हम लोगों को निकालना है. प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ white cement. वाइट सीमेंट सेल करने से कंपनी को पर बैग सीमेंट में ₹8 प्रॉफिट होता था. तो ₹8. Hence, profit on selling 3,000 bags of white cement. कंपनी ने 3,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट सेल किया है. तो 3,000 बैग्स पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है. तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, ₹8 into 3,000, that is ₹8 3s are 24, hence 24,000. okay. Next is loss On selling 1 bag of ग्रे सीमेंट. ग्रे सीमेंट सेल करने से कंपनी को लॉस होता है पर बैग सीमेंट में ₹5. ओके, सो ₹5. देयरफॉर loss on selling 5,000 bags of grey cement is equal to ₹5 into 5,000, that is ₹25,000. ओके, तो कंपनी क्या क्या है, वाइट सीमेंट सेल करके उसको ₹24,000 प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ग्रे सीमेंट सेल करके उसको ₹25,000 लॉस हुआ है. तो कंपनी प्रॉफिट में था और लॉस में था, कंपनी लॉस में है. ओके, कंपनी लॉस में है. सो टोटल लॉस, total loss is equal to ₹25,000 minus ₹24,000, therefore ₹1,000. सो कंपनी को लॉस हुआ है. कितना लॉस हुआ है, ₹1,000 का लॉस हुआ है. ओके.